Hello everyone. In today's session, we are going to solve few sums from operating system subject. We will first solve FCFS problem. FCFS stand for first come first serve. This is one of the CPU scheduling algorithm. Let us see one problem. Consider the three processes P1, P2 and P3 shown below with their arrival time and burst time. If the first come first serve is used as a process scheduling algorithm, then the average turnaround time is dash. Let's solve this. First of all, here we have given three processes P1, P2 and P3 and their arrival timing, that is 0, 1, 2, burst timing, that is 5, 7, 4 is given. Okay. So the first step to apply FCFS is to draw the Gantt chart. So let us draw the Gantt chart. गैंग चार्ट ड्रॉ करने के लिए हम सारे प्रोसेस को हमें मेंशन करना होता है. इसका टाइमिंग शुरू होता है 0 से. हमेशा ये जो नीचे मेंशन होता है ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पर हम नंबर लिखते हैं. दिस इज़ आवर टाइमिंग. ओके, सो 0 अराइवल टाइम पे हमारे पास आया प्रोसेस P1 और इसका बर्स्ट टाइम मीन्स द वर्क, द टाइम ऑफ, यू कैन से कितना उसे काम है. सो उसका काम कितना है प्रोसेस P1 का 5. सो वी विल ऐड 0 में उसने एंट्री ली है एंड 5 टाइम तक उसने काम किया है. देन वी हैव प्रोसेस P2 हुज अराइवल टाइमिंग इज 1. ओके, सो P2 हमें लिखना है. P2 का अराइवल टाइम है 7. सो 5 + 7 विल बी 12. देन P3 का बर्स्ट टाइम है 4. So we'll add 12 plus 4 which is 16. Now when P1 leaves, ये हमारा टाइम स्लॉट है. इसमें ये हमको जो फर्स्ट नंबर होता है यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ होती है जो हमारी, दिस इज अवर एंट्री. ओके, एंड व्हेन द प्रोसेस लीव्स दिस इज अवर एग्जिट पॉइंट. सो दिस इज अवर एंट्री एंड दिस इज अवर एग्जिट. ओके, सो प्रोसेस P1 0 पे एंटर हुआ है, प्रोसेस P1 5 पे कंप्लीट हो गया. प्रोसेस P2 5 पे एंटर हुआ है, प्रोसेस P2 12 पे एग्जिट हो गया. प्रोसेस P3 12 पे एंट्री हुआ है और 16 पे एग्जिट किया है. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंप्लीट दिस टेबल. सो अभी हमारे पास बर्स्ट टाइम के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे कंप्लीशन टाइम. You can write as a CT. Completion time is always mentioned from using this Gantt chart. So P1 का completion time हमारा है 5. Then P2 का completion time है 12. Then P3 का प्रोसेस का complete हुआ है 16 पे. Then completion time के बाद आता है हमारे पास turn around time. टर्न अराउंड टाइम को आप याद रखेंगे टैट. ओके, नाउ टैट, ये जो टर्न अराउंड टाइम है, टर्न अराउंड टाइम बेसिकली टाइम डिनोट करता है कि उसने कितने टाइम तक वो सीपीयू के अंदर काम कर रहा था प्रोसेस. ओके, सो अभी टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड है. टैट इज कैट. रिमेंबर दिस वे. कैट मीन्स C स्टैंड फॉर कंप्लीशन टाइम. सो यू कैन राइट टैट इक्वल टू cat, which is equal to completion time minus arrival time. Okay, so completion time is 5 and the arrival time is 0. So turnaround time for process P1 will be 5. Then 12 minus of 1 which will be 11. Then 16 minus of 2 will be 14. Then after completing calculating turnaround time, we have to calculate the waiting time.
waiting time WT is equal to TB. Now what is the meaning of TB? TB stand for your TAT minus of B, that is BT, burst time. Okay, so you can remember in this shortcut trick, that is waiting time equal to TB, WT is TB. Okay, TB means turnaround time minus of burst time. Now we have to minus this. So 5 minus 5 will be 0, 11 minus of 7 will be 3, 4, correct? Then 14 minus 4 will be 10. Okay, so average turnaround time will be 5 plus 11 plus 14 divided by number of process, which is 3. So this is 30 divided by 3, which is 10. You can write millisecond or unit, milliseconds. And waiting time will be, average waiting time will be 0 plus 4 plus 10 divided by 3, which is equal to 14 divided by 3, which is equal to 4.66 millisecond. So this is how we can solve FCFS. Let's see one more problem. Now you can see in this example, here also we are having 3 processes, P1, P2 and P3, whose arrival timing and burst timing is mentioned. Let us draw the Gantt chart. Step 1. So at time 0 हमारे पास है प्रोसेस P1 जिसका बर्स्ट टाइम है 2. सो मीन्स ये 0 से 2 इसने काम किया. अब जब CPU का टाइम 2 है, यहाँ पर कोई भी प्रोसेस अवेलेबल ही नहीं है. प्रोसेस P2 का अराइवल टाइम है 3, वेरएस प्रोसेस 3 का 5. ओके, सो मीन्स 2 से लेके 3 के बीच में हमारा CPU है आइडल. ओके, नाउ 3 पे हमारे पास कौन आया, कौन सा प्रोसेस आया, प्रोसेस P2 आया. देन उसने काम किया 1 मिनट के लिए. सो ये हो गया 3 से 4. यस, अब अगेन 4 टाइम पीरियड पे यहाँ पे कोई भी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है. प्रोसेस P3 तो कब आया, 5 पे आया है. सो मीन्स 4 से 5 के बीच में हमारा CPU है आइडल. ओके, 5 पे P3 आया और उसने 6 मिनट के लिए काम किया. सो 5 प्लस 6 विल बी 11, करेक्ट. देन अब फिर से इसमें भी वही चीज़ें हम करेंगे. यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीशन टाइम CT. प्रोसेस P1 कब कंप्लीट हुआ है, 2 पे कंप्लीट हुआ है. प्रोसेस P2 कंप्लीट हुआ है 4 पे. प्रोसेस P3 कंप्लीट हुआ है 11 पे. हमेशा याद रखिएगा ये हमारा एंट्री है एंड दिस इज अवर एग्जिट. दिस इज अवर एंट्री, दिस इज अवर एग्जिट. से एंट्री, दिस इज एग्जिट. ओके, नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग कंप्लीशन टाइम, अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा टर्न अराउंड निकालने के लिए. टर्न अराउंड टाइम which is that is cat, that is completion time minus arrival time. So completion time 2, arrival time 0, which is 2. 4 minus of 3, which is 1. 11 minus of 5, which is 6. Now waiting time is TB, means that एंड माइनस ऑफ बर्स्ट टाइम, करेक्ट. सो हमारा टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे 2 है, बर्स्ट टाइम है 2, विच इज 0. देन अगेन 1 minus 1 0. देन 6 minus 6 0. ओके, सो हमको इस केस में कोई भी प्रोसेस वेट ही नहीं कर रहा है. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारा वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम विल बी 0 ओनली, करेक्ट, 0 यूनिट. नाउ विल कैलकुलेट द average turnaround time, which is equivalent to
2 plus 1 plus 6 divided by number of process, which is 3, and this is 9 divided by 3, which is 3 units, or you can write millisecond. Okay, so this is how we can apply FCFS algorithm. Hope so you have understood FCFS.